Assalamu alaikum, dear students. Last time we learnt about the introduction of Federal Excise Act 2005, and inshallah today we will learn about the definitions of Federal Excise Act 2005. Later on we will learn about the sections of Federal Excise Act. So if you haven't watched the video of introduction of Federal Excise Act, then I would recommend you to watch first the video of introduction of Federal Excise Act, then definitions, because most of the questions in the previous papers regarding are also asked about the introduction of Federal Excise Act. So you must go through the introduction of Federal Excise Act. Today we will learn about the definitions of Federal Excise Act 2005. If you are going to skip the definitions of Federal Excise Act, then you would be unable to learn about the sections of Federal Excise Act. मुझे उम्मीद है कि लास्ट वाला लेक्चर आपको यकीनन समझ आया होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने वो नहीं देखा वो भी वो चेक कर लें और देख लें। आखिर में आपने ये करना है कि इंट्रोडक्शन का जैसे ही आपने सुन लिया तो उसके बाद आपने उसके एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे सिलेबस के हर सेक्शन मतलब सिलेबस में जो पार्ट्स हैं वो आपको सब पार्ट्स मिलेंगे एमसीक्यूज की सूरत में। तो वंस अगर आपने किसी एकेडमी में ज्वाइन करके भी पढ़ लिया है तो भी आप वहाँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस देखकर और प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और हमारे पहली डेफिनेशन के जाने। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। One more thing I would like to tell you that I will cover only important definitions. It doesn't. So let us move to our first definition, that is adjudicating authority. In this series I will not only teach you the terms of this Federal Excise Act or sales tax or income tax, but I will also tell you how to learn. मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि किसी चीज़ को कैसे समझा जाएगा। हमेशा एक बात याद रखनी है, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग while reading any new topic which is unable to understand, then you need to bifurcate the words into 2 or 3 parts. Just like I am going to teach you adjudicating authority. Authority, everyone knows what is the authority, the person, the community who has power to pass anything or to do anything. But the word adjudicate is to provide official decision. Now, after reading provide official decision, after learning the meaning of adjudicate, I can assure you 90% people who are watching this video can understand the term adjudicating authority. It is now simple once you know about adjudicate. Adjudicating authority means any authority which has power to pass any order according to this act or this rule. Its rules. What its rules means? The rules which have been passed in this act of federal excise. So, but one more thing, you must remember that adjudicating authority doesn't include the board or appellate tribunal. What is board and what is appellate tribunal? We will also learn in this video. But in simple, board means Federal Board of Revenue, and appellate tribunal where appeal can be shifted for the further decision and against the members or officers of Inland Revenue. So let us turn to our second definition, that is adjustment. Adjustment means deduction of amount of duty paid on goods used in the manufacture or production of other goods from the amount of duty payable on such other goods in the prescribed manner. Now, I would like to teach you in simple words. Just this is
and few you will also find the definitions which I have taken from the this act, and in simple words I have transferred in my own language, and I will teach you in my own language in my understanding. So in simple, when you buy a raw material, for example, you have bought anything for the manufacturer purpose, then you can say that you uh, you can let's move in simple. When you buy raw materials for the sake of manufacture of some goods and you pay tax on that purchase, in this manner you may adjust this tax after the production of the actual goods from the raw materials. फर्ज करें आपने एक रॉ मटेरियल एक खाम चीज़ खरीदी है जिसमें आपको कोई फर्दर चीज़ बनानी है, तो वो जो खाम चीज़ आपने ली है उस पे जो आपने टैक्स दिया है वो आप एडजस्ट करवाएंगे जब आपसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी का ऑफिसर आपसे पूछता है कि भाई आपने ये चीज़ का इतना टैक्स अदा करना है, तो आपने उनको एक ऑफिशियल इनवॉइस दिखानी है आपके रॉ मटेरियल की, और फिर वो एडजस्ट किया जाएगा आपके टैक्स में। तो आपकी जो डिडक्शन जो भी होगी ना, जितनी आपने पहले पे कर दी है अमाउंट टैक्स की, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको हमने सिंपल वर्ड्स में को समझा दिया। तो अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स। अगर फेडरल एक्साइज है तो उसमें टैक्स को हम ड्यूटी कहेंगे। पेड ऑन गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, आपने कोई चीज़ बनाने के लिए जो खाम मटेरियल लिया उसमें जो आपने टैक्स दिया, तो उसकी जब डिडक्शन करवाएंगे लास्ट में, जब आपने पूरी एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर ली है, तो वो जो डिडक्शन होगी उसको हम एडजस्टमेंट कहेंगे। इवन देन अगर आपने अभी भी नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द एडजस्टमेंट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एडिशनल और एक्स्ट्रा टैक्स या डबल टैक्स से, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। चलते हैं दूसरी वीडियो की जानब, दूसरी डेफिनेशन की जानब। एपिलेट ट्राइब्यूनल। अब यहाँ अगेन हम वर्ड को बाइफरकेट करेंगे या टॉपिक को बाइफरकेट करेंगे। इसी तरीके से आपने चैप्टर्स को भी करना है और टाइटल्स जो सेक्शंस के उनको भी करना है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। एपिलेट ट्राइब्यूनल, एपिलेट मतलब रिलेटिंग टू अपील्स। हमेशा याद रखना एपिलेट वर्ड जब भी आए तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटिंग टू अपील्स। व्हाट इज़ अपील? अपील सिंपल वर्ड्स में आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं या आप कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी सिलसिले में, किसी डिसीजन के बारे में। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है? ये एक स्पेशल कोर्ट होता है, a type of court with the authority to deal with a particular problem or disagreement। अगर कोई आपने अगर आप पे एक टैक्स इंक्रीज करके भेजा गया है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से, वेल फर्ज में एक छोटा सपोज करके आप समझा रहा हूँ आपको एक बात, तो आपने देखा है कि वो टैक्स आप पे बढ़कर आया है, तो अगर आपने उस टैक्स के खिलाफ कोई अपील करनी है तो उस अपील को आप स्पेशल कोर्ट में दर्ज करवाएंगे, मतलब स्पेशल तरीके से आप करवाएंगे, तो उसमें फिर आपको ट्रिब्यूनल उसको हम कहते हैं। अब अगर हम दोनों को तोड़कर हमने पढ़ा है, अगर हम इनको मिलाकर पढ़ें, इन एपिलेट ट्रिब्यूनल इज ए स्पेशल कोर्ट और कमेटी that is formed to reconsider a decision made by another court or committee। समझ आ गया कि वही इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने आपके लिए एक टैक्स की जो इनवॉइस भेजी है या टैक्स का एक लेटर भेजा कि आपके पास आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है, और आपने उसको क्या किया, टैली किया है, तो वो आप पे बढ़ा हुआ है। तो आप अगर उनके खिलाफ अपील दर्ज करेंगे तो वो आप क्या करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एपिलेट ट्रिब्यूनल, जहाँ आप दर्ज करवाएंगे, ठीक है ना। और जहाँ डिसीशंस ली जाती है दूसरों के खिलाफ, इन अदर कोर्ट और कमेटी के खिलाफ, मीन्स एपिलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इस्टेब्लिश्ड under section 130 of income tax ordinance। Further we will read about this appellate tribunal in income tax ordinance 2001। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड की।
What is board? Whenever you heard about the board, it means Federal Board of Revenue, which was established under the Central Board of Revenue. The establishment of the board is done according to third section of FBR Act 2007. You will also learn the whole Federal Board Act 2000, FBR Act 2007, inshallah, in upcoming videos. And there we will also learn about the chapters, sections, schedules, and that Act of 2007, FBR Act 2007. Similarly, what is next? Chief Commissioner or Commissioner. One thing you must memorize. In cell text, we will learn about the appointment of the Inland Revenue Officer in section 30. However, in Federal Excise Act, we will learn about appointment of these officers in section 29. आपको बताता चलूँ कि चीफ कमिश्नर या कमिश्नर, अब इनकी डेफिनेशन अगर आप एक्ट में उठा के देखेंगे ये अलग अलग है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इन दोनों को साथ रख के एक ही शॉर्ट करके बताना चाह रहा हूँ. मीन्स अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, जो कि अपॉइंट किया जा रहा हो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, वो किस रूल के तहत, किस सेक्शन के तहत किया जाएगा? 29. किसका सेक्शन 29? फेडरल एक्साइज एक्ट 2005. एंड वी विल गो थ्रू द सेक्शन 29. ये बात याद रहे, जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे वन बाय वन, तो उसमें जब सेक्शन 29 आएगा तो उसमें पूरी फहरिस्त बनी होगी किनकी? ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की, ठीक है ना, जो 29 के तहत होगा section 29. Then we will come to know in detail that the appointment of the member or the commissioner and chief commissioner is done through this section of Federal Excise Act 2005. तो इसी तरीके से सिर्फ चीफ कमिश्नर या कमिश्नर नहीं है, कमिश्नर अपील है, बहुत सारे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनमें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है जो आपकी अपनी पोस्ट होगी. तो ये सारी फहरिस्त बनी हुई है किस सेक्शन में? सेक्शन 29 में. काइंडली ये सेक्शन भी आपको याद कर लेने चाहिए अभी से ही, मतलब जैसे जैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको भी आपने याद रखना है. आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की जानब. कन्वीनियंस. अब आप अगर इसको समझें कन्वीनियंस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सप्लाई या ट्रांसफ़र करते हैं, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती है किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू 4 थिंग्स. अब कुछ और ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ क्वेश्चंस के हवाले से कि समटाइम्स एन एग्जामिनर में आस्क कन्वेंस मीन्स vessels, aircraft, vehicle or animal. और फिफ्थ ऑप्शन वो देगा all of these, so you have to mark all of these. Why? Sometimes people ignore animal. Aspirants ignore animal. They think that this is the modern system and animals are not anymore introduced in this transport system. So they skip animal and they only mark vehicle. जबकि ट्रांसफ़र या किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए सिर्फ व्हीकल नहीं है, एयरक्राफ्ट हो सकता है. वेसल्स किसको कहते हैं? कोई भी शिप या बोट जो कि इस तौर तरीके लिए इस्तेमाल हो सामान भेजने के लिए, तो उसके लिए हम ये 4 चीज़ें हमने हमेशा याद रखनी पड़ेंगी. मीन्स एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर. अब गुड्स को शिफ्ट करना हो या पैसेंजर जाए तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? कन्वेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, एनिमल. तो all or 4 are included in conveyance. Default surcharge. This is the most important term in this Federal Excise Act as well as in sales tax. We will also read it and learn in Sales Tax Act. But once if you clear this terminology in this section, this act, then you will also be cleared in Sales Tax Act. It has no difference, but
If you write it here, it would be similar to sell tax. So default, अब इसको हमने फिर अगेन बाइफरकेट किया है. क्या किया है? डिफ़ॉल्ट को अलग रखा है, सरचार्ज को अलग रखा है. डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्टर एक वो बंदा होता है जो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यकीनन यहाँ टैक्स की बात होगी. तो एक बंदा है जो अनेबल होता है पे करना क्या, टैक्स को एक टाइम मतलब ड्यू डेट पे. तो ड्यू डेट पे अगर वो नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्टर बन जाएगा. अब सरचार्ज क्या, अब जो अमाउंट उसने एक तो देनी है और दूसरी उसके ऊपर क्या देना है, एडिशनल अमाउंट देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सरचार्ज. क्यों? उसका मतलब ये है कि भाई आपने क्या देना है, आपने एक पेनल्टी देनी है, मतलब एक सरचार्ज देना है. तो वो जो आपने क्या दी, एडिशनल अमाउंट दी, वो सरचार्ज का अमाउंट होगी. तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो सो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मीन्स एडिशनल अमाउंट पेड इफ अ पर्सन इज अनेबल टू पे द टैक्स ऑन टाइम. अब कितना सिंपल हो गया डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, बहुत ही सिंपल हो गया. अब दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि अब ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, ये कौन से सेक्शन में होगी, वो सेक्शन 8 में इंट्रोड्यूस होगी, या हम पढ़ाएंगे आपको सेक्शन 8 जब सेक्शंस की वीडियो पढ़ेंगे हम. इसी तरीके से हम आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की जानिब. डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको एग्जाम्पल दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा जिसके तहत आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो क्या होता है, उसको अब एग्जाम में मोस्टली ये भी पूछा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, होलसेलर या सप्लायर या जो होता है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर. तो आपने किस पे मार्क करना है, मैन्युफैक्चरर पे. ठीक हो गया. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर फॉर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम हिम एंड ही सेल्स इट टू अ होलसेल डीलर. इंशाल्लाह मैं आपको ना इसकी एक और भी फिगर समझाऊंगा आगे सेक्शंस में, जब इसकी बात आएगी तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा. इसके अलावा क्या है, अब जैसे आपने इसको समझ लिया, पर्सन कौन, बंदा जो अपॉइंट किया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, और वही क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब विरासत करता है. कैसे, एक से लेके दूसरे को देना. अब किससे लेता है, मैन्युफैक्चरर से. अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर परचेजिंग गुड्स, परचेज किए गुड्स मैन्युफैक्चरर से, और वो बेचता कहाँ है, होलसेल डीलर को. अब जो दरमियान में हो गया वो कौन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर. समझ आ गई. आगे बढ़ते हैं. ड्यू डेट, आप किसी भी चीज़ पे आप देख लें तो एक जैसे कि किसी बिलों पे या जो बिल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर, उसमें आप थोड़ा सा देखें तो उधर लिखा होता है ड्यू डेट, जहाँ पर आपको एक मुकर्ररा तारीख बताई जाती है. जो मुकर्ररा तारीख होती है कि भाई फलां तारीख को आपने क्या करना है, बिल पे करना है इन या अदरवाइज आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा, या आपने उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाई जाएगी. अब देखें, टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 4 इट मीन्स 15 डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ. इसमें अब आपको क्या समझना है कि ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, जिसमें फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक सेक्शन है फेडरल एक्साइज एक्ट का, जिसमें आपने पूरा पढ़ना होता है कि भाई फलां डेट को आपने फाइल रिटर्न करनी, मतलब जो भी आपके ऊपर टैक्सेस होते हैं वो आपने क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं उस सेक्शन के तहत. इट मीन्स 15 डे ऑफ द मंथ, अब 15वीं तारीख तक, मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो कहाँ के बाद फॉलो किया जाता है, मंथ के एंड के बाद जो फॉलो किया जाता है, मतलब 1 से 15 या 15 डे ऑफ द मंथ हो जाता है. फेडरल एक्साइज एक्ट में ड्यू डेट कहाँ काउंट होती है, 15 डे ऑफ द मंथ. ये हमेशा क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, जो रिपीट भी किया गया मोस्ट ऑफ द टाइम. आगे बढ़ते हैं.
ड्यूटेबल गुड्स। ड्यूटेबल गुड्स क्या है? बिल्कुल सिंपल। अब ड्यूटीएबल गुड्स आपने समझना क्या है। ड्यूटी, ड्यूटी क्या है? ड्यूटी हम भी पढ़ेंगे, हम ड्यूटी भी आगे यकीनन पढ़ेंगे। अब ड्यूटी क्या है? फेडरल एक्साइज एक्ट में जो टैक्स पे करना है वो ड्यूटी काउंट होगी। अब जो ड्यूटी काउंट होगी वो फेडरल एक्साइज में जो टैक्स होगा उसको ड्यूटी हम कहेंगे। तो ड्यूटीएबल गुड्स मतलब किन गुड्स पे फेडरल एक्साइज टैक्स लगेगा या ड्यूटी लगेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ें तो ऑल दोज गुड्स व्हिच आर प्रेजेंट और मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ दिस एक्ट। अब जैसे ड्यूटेबल गुड्स वो होंगे जो कि पहले से दिए गए हैं कौन से स्केड्यूल में? फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ दिस एक्ट। कौन से एक्ट में? फेडरल एक्साइज एक्ट के जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें जो भी गुड्स दिए गए हैं वो क्या होंगे? ड्यूटेबल गुड्स। दूसरी बात, एक्सेप्शन जो है, those goods which are mentioned in the section 16 are not dutiable goods। अब सेक्शन 16 में क्या है? एग्जम्पशंस दी गई हैं, मतलब वो टैक्सेस, वो चीज़ें जिसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी उसको हम एग्जम्पशंस कहते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट द एग्जम्पशंस। ठीक है। ड्यूटेबल सप्लाई। अब सप्लाई और ड्यूटेबल सर्विस, इन दोनों में फ़र्क भी आप जान लें। जो ड्यूटेबल सप्लाई होगी वो गुड्स की होगी, ड्यूटेबल सर्विस होगी तो वो सर्विसेज की होगी। अब गुड्स मैंने जैसे आपको पढ़ाया, कोई बेवरेजेस हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मटेरियल, नेचुरल गैस वगैरह जो भी मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद क्या हो जाता है? ड्यूटेबल सर्विसेज, सर्विसेज में काउंट हो जाती हैं, जैसे इंटरनेट हो जाता है, पीआईए की जो फ्लाइंग सर्विस हो जाती है, उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हो जाती है पाकिस्तान में, वही रेलवे की सर्विस हो गई, ये सारी हमें क्या किस में काउंट होगी? ड्यूटेबल सर्विस में। लेकिन सप्लाई का जब वर्ड आ जाए तो उसको मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं गुड्स को। अब पढ़ेंगे डेफिनेशन। इट मीन्स अ सप्लाई ड्यूटेबल गुड्स। जो कौन से ड्यूटेबल गुड्स जो हमने पढ़ा, स्केड्यूल 1 में जो भी गुड्स होंगे वो ड्यूटेबल गुड्स होंगे। इट मीन्स अ सप्लाई ऑफ ड्यूटेबल गुड्स मेड बाय अ मैन्युफैक्चरर other than a supply of goods which is exempt under section 16। वही बात जो मैंने समझाई कि सब वो गुड्स जो फर्स्ट स्केड्यूल में हैं और वो कहाँ सप्लाई किए जा रहे हैं? बाय मैन्युफैक्चरर। अदर देन, उसके अलावा कौन से? सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 16, वो नहीं काउंट किए जाएंगे। ड्यूटेबल सप्लाई उसको नहीं काउंट किया जाएगा जो 16 में जो भी गुड्स को डिस्कस किया गया है। दिस मेंशंस द सप्लाई ऑफ गुड। अब यहाँ वही मैंने बताया आपको, सप्लाई ऑफ गुड्स जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ड्यूटेबल सप्लाई। लेकिन ड्यूटेबल कोई सर्विसेज हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो जो भी सर्विसेज होंगी, और उसमें भी क्या काउंट होगा? सेक्शन 16 में जो जिक्र किए गए हैं सर्विसेज उसको क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट करेंगे, और इसके अलावा जो भी होंगी वो ड्यूटेबल सर्विसेज हो जाएंगी। ऑल एक्साइजेबल सर्विसेज आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल एक्सेप्ट दोज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होंगी डेफिनेशंस। अब पढ़ते हैं ड्यूटी। अब ड्यूटी मीन्स एनी सम पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब सम अमाउंट जो भी है, एक अमाउंट है जो कि पेएबल है, मतलब लागू होगी, पे करनी पड़ेगी, जो कि एबल हो पे करने का मतलब पेएबल है ये, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसके तहत दिस एक्ट कौन सा? फेडरल एक्साइज एक्ट। इसी तरह ड्यूटी ड्यू। अब देखें ड्यूटी ड्यू, अब ड्यूटी पढ़ा हमने, अब पढ़ते हैं ड्यूटी, हमने सॉरी ड्यू डेट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ड्यूटी ड्यू। अब ड्यू होती है मतलब किसी के ऊपर लागू हो और उसको देने नहीं हो, तो वो क्या होता है? ड्यूटी ड्यू। मीन्स ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब सप्लाईज हमने क्या पढ़ा था? गुड्स के लिए, और सर्विसेज हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब सप्लाई मेड और सर्विसेज प्रोवाइड। सप्लाई मेड मतलब गुड्स मेड, बनाए गए, और सर्विसेज प्रोवाइडेड या सर्विसेज दी गई और रेंडर की गई ड्यूरिंग अ मंथ एंड शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने किसके तहत पढ़ा था? सेक्शन 4 के तहत हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ड्यूटी ड्यू मतलब किसी के ऊपर लागू है और उसको देनी पड़ेगी। कब तक? ड्यू डेट तक।
फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमेशा 15 डे ऑफ द मंथ होगी, तो उसमें वो दी जाएगी, पे की जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ एक एमसीक्यूज रेज होता रहता है, प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स, अब इस्टेब्लिशमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू फेडरल एक्साइज एक्ट? वो अंडरटेकिंग या फर्म या कंपनी, कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इंडिविजुअल, ये सारे किस में काउंट होंगे? इस्टेब्लिशमेंट में। अब इस्टेब्लिशमेंट अगर वो क्वेश्चन पूछता है इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स और मीन्स, फिर ब्लैंक दे देता है और 4 से 5 क्वेश्चन देता है, सॉरी ऑप्शन देता है। इन अंडरटेकिंग, फर्म और कंपनी, कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन इंडिविजुअल, और नीचे अगर वो ऑप्शन देता है ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑल ऑफ दिस करना है। अगर 3 चीज़ें हों, इन अंडरटेकिंग, फर्म और कंपनी, कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस लगाना है। फैक्ट्री, अब फैक्ट्री का मतलब क्या है? हमने हमेशा पढ़ा है फलां चीज़ की फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री या आपकी कपड़े की फैक्ट्री, ये सारी किस में काउंट होगी? इसमें फैक्ट्री में काउंट होगी। अब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है? एनी प्रीमाइसेस क्या है? एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द precincts thereof wherein or in any part of which goods are manufactured, or wherein or in any part of which any manufacturing process connected with the production of goods is being carried on or is ordinarily carried on। अब इसका मतलब क्या है? ये हमने डेफिनेशन तो बुक और वो एक्ट से निकाल दी, लेकिन मतलब समझना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनी प्रीमाइसेस मतलब कोई हुदूद, कोई एक एक्सटेंट, उसमें अगर क्या प्रेसेंट्स मतलब कुछ दीवारें हों और उसके अंदर क्या हो रहा हो, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हो या गुड्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही हो, मिसाल तो सिगरेट्स या आपकी कोका कोला या कोई कोल्ड ड्रिंक है, एक जगह क्या बन रही है, वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है क्या कोल्ड ड्रिंक, लेकिन एक जगह बॉटल्स बन रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? दोनों को हम एक एक तो यकीनन जो डायरेक्ट है वो क्या कोल्ड ड्रिंक बन रही है, लेकिन उसकी जो बॉटल्स होती हैं वो दूसरी बिल्डिंग में बन रही, तो दोनों क्या काउंट होंगी? फैक्ट्री काउंट होगी। यही इसका मतलब है। एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडेड द precincts thereof wherein or in any part of which goods are manufactured, और ये क्या है दूसरा? which any manufacturing process connected with the production of goods। अब प्रोसेस कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होगी? बॉटल हो गई मिसाल तो, और गुड्स मैन्युफैक्चर जो डायरेक्टली क्या हो रहा है? बेवरेज जो भी बन रही है, कोल्ड ड्रिंक जो भी बन रही है। अब क्या फ्रेंचाइज, हमने हमेशा पढ़ी होंगी फ्रेंचाइज, भाई बाटा की फ्रेंचाइज हो गई, मोबिलिंग की फ्रेंचाइज हो गई, यूफोन की फ्रेंचाइज हो गई, सर्विस की फ्रेंचाइज हो गई। इसी तरीके से हम अगर इसमें पढ़ेंगे, मीन्स एनी अथॉरिटी गिवन बाय फ्रेंचाइजर टू अ फ्रेंचाइजी is contractually or otherwise granted any right to produce, manufacture, sell or trade। बात आपने हमेशा सही समझी है, लेकिन बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन वो रेज इस तरीके से करता है कि फ्रेंचाइज इंक्लूड्स प्रोड्यूस, फ्रेंचाइज किसका राइट देता है कि एक फ्रेंचाइज जो है वो फ्रेंचाइजर जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है या ट्रेड करता है, कि आप हमारा ये लाइसेंस लें और इसके तहत पे आप हमारी नाम से आप क्या खोलें? एक ब्रांच खोलें, फ्रेंचाइज खोलें, और जिसके अंदर आपने क्या क्या कर सकते हैं? एक चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे या ट्रेड करते हैं उसका, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेंचाइज। गुड्स इंश्योरेंस, यहाँ भी वो क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस पेपर में भी पूछा है उसने कि गुड्स इंश्योरेंस इंक्लूड्स फायर, मैरीन, थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड अदर सच मिसलेनियस इंश्योरेंस।
अब गुड्स इंश्योरेंस में ये चीज़ें 4 आपने हमेशा याद रखनी पड़ेंगी कि इंश्योरेंस किस-किस की होती है गुड्स इंश्योरेंस के लिए। अगर वो जल जाते हैं, मीनिंग थ्रू थेफ्ट, चोरी हो जाते हैं या कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किस में काउंट होगा? गुड्स इंश्योरेंस में। मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरर कौन होता है? अब ये भी आपने याद रखना होगा, मैन्युफैक्चरर कौन-कौन हो सकता है? एक मैन्युफैक्चरर रीमैन्युफैक्चर कर सकता है एक चीज़ को, रीमेकिंग उसको अगेन बनाना, रिकंडीशनिंग उसको लेके पुरानी चीज़ को फिर से उसको अच्छी कंडीशन में लाना या रिपेयर करना या पैकिंग और रीपैकिंग करना, ये सारे काउंट होंगे मैन्युफैक्चर में। एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज हायर्ड लेबर इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, या कोई ऐसा बंदा जो किसी लेबर को हायर करके और उसी किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर कहेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा क्या करता है, कोई चीज़ खुद भी नहीं बना रहा और अपने नाम सिर्फ उसके नाम बिहाफ पे बन रही है तो वो भी किस में काउंट होगा? मैन्युफैक्चरर में काउंट होगा। नॉन टैरिफ एरिया क्या होता है? और अगर जब नॉन टैरिफ एरिया समझ आ जाएगा आपको तो यकीनन टैरिफ एरिया भी समझ आ जाएगा। मीन्स नॉन टैरिफ एरिया मीन्स आज़ाद जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज और एरिया टू विच दिस एक्ट डजंट अप्लाई। अब टैरिफ एरिया और नॉन टैरिफ एरिया मतलब जहाँ पर टैक्स लागू होगा और जहाँ पर नहीं होगा। अब टैरिफ एरियाज फिर कौन सी हो जाएंगी? ऑल वो जगहें जो नॉन टैरिफ एरियाज में हैं, उसके अलावा जो भी जगहें हो जाती हैं उसको हम टैरिफ एरियाज कहेंगे। जैसे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सारे क्या हो जाते हैं? टैरिफ एरियाज हो जाते हैं। और इनको छोड़ के केपी के भी इसमें हो जाएगा। इनको छोड़कर जो भी पीछे जगहें रह जाती हैं, एरियाज रह जाते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज, या स्पेशली क्या है, एफबीआर ने कोई ना कोई चीज़ को मेंशन किया हो, कोई एरिया को मेंशन किया हो तो वो भी उसमें काउंट हो जाएगा, किसमें? नॉन टैरिफ एरिया में। पर्सन क्या है? अब पर्सन ये नहीं कि एक बंदा, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी जो है एक्ट्स की, लॉ की, उसमें ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सिर्फ जस्ट एक पहलू से नहीं देखा जाता है, इसमें किस किस को भी इंक्लूड किया जाता है पर्सन में। कंपनी भी पर्सन में होगी, एसोसिएशन, a body of individual whether incorporated or not। अब incorporated or not मतलब एक incorporated हम उसको, एक कॉर्पोरेट होती है और इनकॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट होती है लीगल पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो मीन्स नॉन लीगल। एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि लीगल हो या नॉन लीगल हो, नॉन लीगल हो, पब्लिक और लोकल अथॉरिटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो सारे किस में काउंट होंगे? पर्सन में। प्रॉपर्टी डेवलपर और प्रोमोटर कौन होते हैं? अब प्रॉपर्टी डेवलपर जो कि डेवलप करवा रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी, और इसी की डेफिनेशन डाल के वो ऑप्शन दे सकता है कि प्रॉपर्टी द अबव मेंशन इज प्रॉपर्टी डेवलपर, प्रोमोटर, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो आपने क्या करना है? सी करना है, बोथ ऑफ दीज। मीन्स अ पर्सन इंगेज इन डेवलपमेंट, वही बात जो मैंने बताई, कोई चीज़ जो प्रॉपर्टी डेवलप करवा रहा है, ऑफ परचेज और लीज्ड लैंड, या उसने लीज पे लैंड ली हुई और या परचेज की, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करवा रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी डेवलपर और प्रोमोटर। विसिल ब्लोअर, अब विसिल ब्लोअर क्या होता है? देखें, इसको फर्दर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 42 डी ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट, लेकिन इन शॉर्ट हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझाने की खातिर बता सकता हूँ कि विसिल ब्लोअर एक ऐसे है कि मिसाल तौर आपको फाइल रिटर्न करनी है, सेक्शन 4 के तहत आपके ऊपर इतना टैक्स हुआ है, ड्यूटी हुई है जो कि आपने पे करनी है, लेकिन आपने क्या करना है? आपने मिसाल तो उसमें कोई चोरी कर रहे हैं, कोई आपने डिडक्शन करके लगा दिया या एडजस्टमेंट्स ज़्यादा लगा कर आपने उसको बढ़ाया या कम कर दिया है किसी हवाले से, तो आप क्या करते हैं? आप ये जो काम कर रहे हैं तो आपके साथ ही कोई बंदा है जिसने
आपकी इस चोरी को देख लिया और वो किसको इन्फॉर्म करता है, गवर्नमेंट को या मुलाजिम किसके, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को, एक थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर वो बात यकीनन क्या होती है, वो बात की जाती है, मतलब वो चेक करते हैं और ऐसा बिल्कुल चोरी उनको भी फील हुई है, मतलब वो साबित प्रूव हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर जो मुकदमा चलेगा और आपके ऊपर जितना टैक्स होता है और जितनी चोरी होती है उसका कुछ परसेंट किसको देंगे, उस बंदे को जिसने आपको कैच किया था, जिसने आपको पकड़ा था। तो ये क्या है, टैक्स प्रमोट करने के लिए एक ऑप्शन या एक मतलब नई पॉलिसी बनाई गई, जिसको हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर वो बंदा होगा। ठीक ना, समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता तो यकीनन मैं आपको सेक्शंस के पार्ट में पढ़ाऊंगा। अब होलसेल डीलर क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु बायज और सेल्स गुड होलसेल फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चर। अब होलसेल डीलर वही होता है, एक बंदा होता है जो कि एक चीज़ क्या करता है, बाय करता है या सेल करता है। किसके उसका मकसद क्या होता है, मैन्युफैक्चर या ट्रेड, इंक्लूड्स ब्रोकर और कमीशन एजेंट। आई थिंक होलसेल डीलर आपको बिल्कुल सिंपल है, इसको अगर हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो यकीनन शायद आप क्या हो जाएं, थोड़े से कंफ्यूज जाएं। तो होलसेल डीलर की मैं आपको एक पूरा सा फहरिस्त दूंगा, जिसमें आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर आ रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, होलसेलर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है कि इसका रिटेलर आ रहा है, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, कंज्यूमर आता है, जो लास्ट में कंज्यूम कर रहा है। उसी तरीके से हम अब इसमें आपने सिर्फ याद ये रखना है कि होलसेल डीलर में ब्रोकर या कमीशन एजेंट भी काउंट हो जाता है। लास्ट एंड जो सबसे आखिरी डेफिनेशन है, अब इसमें कुछ डेफिनेशन मैंने इसके की हैं जो कि बिल्कुल आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगी, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगी है ना। इस हवाले से आपने क्या करना है, आपने अब जो आखिर में आपने ये क्या है, ज़ीरो रेटेड समझनी है। ज़ीरो रेटेड का मतलब है ड्यूटी ऑफ फेडरल एक्साइज लेविड एंड चार्ज एट द रेट ऑफ 0% अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट। अब ये ज़ीरो रेटेड क्या है, जिस ज़ीरो रेटेड मतलब वो ड्यूटी जो ज़ीरो रेट पे काउंट की जाए, मतलब जिस पे टैक्स ज़ीरो रेट लगाया जाए। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 5 में ना, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इसमें भी अगर मतलब बहुत सिंपल है, ये आप हर सेक्शन हर एक्ट में पढ़ेंगे ज़ीरो रेटेड, ठीक है ना। तो कौन से गुड्स हैं जिस पे ज़ीरो रेट या 0% पे ड्यूटी काउंट होती है, वो सारे आपने पढ़ने हैं सेक्शन 5 में ना। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हर एक सेक्शन, हर एक डेफिनेशन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाई है। इवन देन अगर आपको लगता है कि आपको कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, ताकि हम आगे भी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ले आएंगे आपके लिए सेक्शन ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट, और उस एक्ट को जब उस वीडियो को आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपको कौन सी उस वीडियो के बाद आपने प्रैक्टिस करने हैं सारे MCQs कहाँ पर, mcqsplatform.com पे। अभी भी आप mcqsplatform.com पे जाके मोर सेक्शन में जाके इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को क्लिक करके तो आपको सब सिलेबस के सेक्शन मिल जाएंगे, जिसमें सेल टैक्स भी हो जाता है, इनकम टैक्स हो जाता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हो जाता है, फिस्कल पॉलिसी हो जाती है, सब सेक्शन आपको उधर मिल जाएंगे। इंग्लिश का भी इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द बनाएंगे, कुछ इंग्लिश के प्रपोजिशन वगैरह मैंने दे दिए, तो आप वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, thanks a lot for watching this video. Inshallah we will meet in next video of sections of Federal Excise Act. Allah Hafiz.